अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने बीटा फंक्शन को पढ़ना है। बीटा फंक्शन भी गामा फंक्शन की तरह डेफिनेट इंटीग्रल के जरिए हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इट इज़ आल्सो an area function because definite integral gives the area under the curve, therefore beta function is also an area function। और ये दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, m and n, where m and n are integers normally and both are positive। so if we vary the values of m and n, तो जो एरिया होगा वो भी चेंज होगा। तो जो एरिया होगा ये वेरिएबल एरिया को ये बीटा फंक्शन जो है रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम इसको डिफाइन करेंगे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज एंड देन रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन भी आज हम पढ़ेंगे। और उससे हम एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी गामा फंक्शन की गामा 1/2 भी प्रूव करेंगे। तो इसको हम पहले डिफाइन करते हैं बीटा फंक्शन को। बीटा फंक्शन denoted by beta m comma n, read as beta mn, where m and n are both positive, non-negative, they are greater than 0, and so beta function denoted by beta mn is read as beta mn, where m and n are both positive, is defined by a definite integral from 0 to 1. So 0 to 1 is the limit of that definite integral. So as beta mn equal to 0 to 1 x power m minus 1 into 1 minus x power n minus 1 dx. X is the variable with respect to which this integration has to be done. So when this limit is applied, this x is removed and we get an answer in the terms of m and n. That's why it is function of m and n. And m and n are positive numbers. अच्छा, अब ये x की जगह अगर t लिख दें, पास बॉक्स में t लिखा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी डेफिनेशन वही रहेगी। देन बीटा mn will be 0 to 1 t power m minus 1 1 minus t n minus 1 dt, and you know that t and x are dummy variables actually, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि a to b f of x dx is equal to a to b f of y dy। इस प्रॉपर्टी में यहाँ पर t हो, x हो, y हो, कोई भी हो, लिमिट अगर सेम रहे तो फंक्शन भी सेम रहेगा। Therefore
So beta function is defined as beta mn 0 to 1 x power m minus 1 1 minus x होल पावर n माइनस 1 dx। मैं जो डेफिनेशन इस्तेमाल करूंगा नॉर्मली आज के लेक्चर में वो इस रोटेशन को मैं इस्तेमाल करूंगा। तो ये अब आपके पास है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय बीटा m comma n and it is read as beta mn is defined by a definite integral from 0 to 1 as beta mn equal to 0 to 1 x power m minus 1 into 1 minus x whole power n minus 1 dx where m and n are positive numbers। तो कुछ बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं एंड देन we'll use those properties to establish a relation between beta and gamma functions। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज of beta function first property is beta m comma n is equal to beta nm। so if we change the order of these variables m and n, the beta function will stay the same। Second is beta mn is equal to 0 to infinity। no, limit is been changed। हमारी डेफिनेशन पढ़ी है उसमें 0 to 1 था, अब लिमिट क्या आ गई 0 to infinity। then the integrand will become x power n minus 1 over 1 plus x whole power m plus n and using first property this can be written as 0 to infinity x power m minus 1 because beta mn is equal to beta nm over 1 plus x whole power m plus n dx। and this is the second property। and third property जो हमने प्रूव करनी है वो है बीटा m n is equal to 2 into 0 to pi by 2 sin theta power 2m minus 1। यहाँ पर इसको आप sin 2m minus 1 थीटा भी लिख सकते हैं into cos थीटा। मैंने इसलिए लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो। It means it is sin की पावर होल पावर into cos theta 2n minus 1 d theta। so ये एक डेफिनेट हमने बीटा फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो हमने प्रूव करनी है। पहली प्रॉपर्टी है कि एक किस्म की जैसा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। दूसरी है बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to infinity x power n minus 1 over 1 plus x whole power m plus n dx is equal to 0 to infinity x power m minus 1 over 1 plus x whole power m plus n using this property is equal to dx। Similarly, beta mn can be defined in terms of trigonometric function as 2 into 0 to pi by 2 sin 2n minus 1 theta into cos 2n minus 1 theta d theta। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं
पहले हम इनको वन बाय वन प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम प्रूव करते हैं। हाँ जी, बाय डेफिनेशन प्रूफ इसका हम करते हैं। जिस तरह हम गैमा फंक्शंस की प्रॉपर्टीज प्रूव करते रहे हैं बाय डेफिनेशन, तो इसको भी हम डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन यूज करेंगे। सो बाय डेफिनेशन वी कैन राइट बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 x power m minus 1 into 1 minus x whole power n minus 1 dx। हमने इसको बीटा एन एम प्रूव करना है, यानी यहाँ पर n आना चाहिए और यहाँ पर m आना चाहिए। सो इसके दो तरीके हैं। एक मेथड जो है कि 1 माइनस एक्स को y पुट कर दें, तो उससे भी वही चीज बन सकती है बीटा एम एन। दूसरी यह है कि आपने 0 to 1 है, आपने एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है डेफिनेट इंटीग्रल की। कौन सी? कि 0 to a f of x, we know that 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। Mean if we replace x by a minus x, then the integral will remain the same if the limit is 0 to a। So if we use this property in this equation number 1, suppose, so using this property in 1, we can write beta mn is equal to 0 to 1। देखें यहाँ 0 to a है, यहाँ भी 0 to a है। अब 0 to 1 भी क्या रहेगा? 0 to 1। x की जगह क्या पुट करना है हमने? a माइनस एक्स। a यहाँ पर क्या है? 1, तो x की जगह आप क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स होल पावर m माइनस 1 इंटू, इधर भी x की जगह क्या आएगा? 1 माइनस, 1 माइनस 1 प्लस x हो जाएगा होल पावर n माइनस 1 dx। 1 से 1 कैंसल हो गया, तो ये क्या बच गया? x पावर n माइनस 1। वी कैन राइट इट लाइक दैट 0 to 1। पहले इसको लिख लें, x पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर m माइनस 1 dx। हमारे पास डेफिनेशन क्या थी? बीटा एम एन एक्स पावर m माइनस 1 माइनस एक्स n माइनस 1 dx। जो x की पावर है वो पहले आता है, यानी m यहाँ पे जो नंबर होगा वो यहाँ पे आएगा, और जो 1 माइनस की पावर होगी वो यहाँ पे आएगी। अब देखें x की पावर यहाँ पर क्या आ गया? n आ गया, तो मतलब ये किसकी डेफिनेशन है? बेसिकली ये बीटा n और 1 माइनस की पावर में m माइनस 1, तो यहाँ पर m आ गया n। सो वी हैव प्रूव्ड दैट बीटा mn is equal to beta nm। दिस इज, सो इस तरीके से हम फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शंस प्रूव कर सकते हैं। कैसे हमने किया है? बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। हमने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की इस पे 1 पे, तो x जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स, और इस x की जगह फिर 1 माइनस एक्स, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आपको बताएगा x पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर m। अब जो पावर x की वो पहले आती है, तो पहले n आ गया, बाद में m आ गया, तो हमारा बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम हैज बीन प्रूव्ड।
हाँ जी, नेक्स्ट है सेकंड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट हमने प्रूव कर ली, सेकंड है बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to infinity x पावर n minus 1 over 1 plus x whole power m plus n dx, or using first property this can be written as 0 to infinity x power m minus 1 over 1 plus x m plus n dx. ये हमने प्रूफ करनी है। अब हमने इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखें हमारे पास जो डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की वो ये है, बाय डेफिनेशन बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 x पावर m minus 1 into 1 minus x पावर n minus 1 dx। ये हमारे पास बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 x पावर m minus 1 into 1 minus x होल पावर n minus 1 dx। ये हमारे पास बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है x पावर m माइनस 1 और n माइनस 1 जो भी है दोनों बराबर ही है क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, ओवर 1 प्लस x पावर m प्लस। तो ये x जो है m माइनस 1 अगर है, इसकी जगह अगर हम 1 ओवर पुट कर दें तो ये चीज है बंद है, उसको देखते हुए हम इस पे पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस y, because 1 over 1 plus x. So this implies that 1 plus y is equal to 1 over x. इसको इस्तेमाल करें यहाँ पर, when x is 0 then 1 plus y is equal to 1 over 0 is equal to infinity, which implies y is infinity. ये हमारे पास पहली लिमिट आ गई। एंड when x क्या बन गई है, इंफिनिटी से 0, so 1 plus y, sorry, therefore our beta mn will become 0, infinity to 0, x की जगह क्या आ जाएगा 1 over 1 plus y, 1 over 1 plus y, पावर क्या आएगी m माइनस 1 इंटू यहां पर देखें 1 ओवर 1 प्लस x, 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस y, ये x की वैल्यू मैंने पुट की और इसकी पावर क्या है m प्लस n। आगे क्या है dx, dx यहां से निकालें, यहां से तो dx यहां से निकलता है dx, ये निकाला है dx यहां से निकलता है क्या, dx इज इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस y पावर रूल लगा लें स्क्वायर dy। सो यहां पर आगे लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे क्या, dx की जगह आ जाएगा 1 प्लस y
होल स्क्वायर इनटू dy। सो दिस इज आवर इंटेग्रल नाउ। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि क्या ये बीटा mn की फॉर्म में आ जाता है, यानी इस फॉर्म में आ जाता है। ये देखते हैं इसको। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, बीटा mn इज इक्वल टू, अब देखें ये माइनस जो है जब बाहर आएगा तो इस लिमिट को ये इन्वर्ट कर देगा, तो माइनस खत्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर। अब आगे देखें, ये दोनों सेम है 1 प्लस वाई, इसको जरा लिख लें आप, क्या बनेगा, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो मानेगा 1/1 प्लस वाई पावर m माइनस 1 प्लस 2, ये वाला, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसको सिंपलीफाई करते हैं। इधर हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में 1 ओवर एलसीएम लेंगे, 1 प्लस वाई, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस वाई प्लस 1, ओवर क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई और होल पावर आ जाएगा m प्लस n। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, कहाँ से कर रहे हैं इसका मुझे नहीं अंदाजा, कर रहे हैं। देखें हमने इसमें पुट करना है x की जगह, तो ये आ गया, ठीक है। आगे 1 माइनस है, ये 1 ओवर नहीं है, सॉरी, तो ये होगा 1 माइनस, ये 1 माइनस x की जगह क्या है 1 ओवर 1 प्लस वाई होल पावर n माइनस 1। क्लियर। सो तो ये जो चीज है, ये टर्म, अब देखें ये दो मल्टीप्लाई होकर ये बना के इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 1 प्लस वाई, एलसीएम लिया और पावर सारे किया तो उसकी पावर साथ आएगी n माइनस 1। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा जनाब 1 प्लस वाई माइनस 1 और पावर इधर भी हुई रहेगी n माइनस 1। ऐसे हमने इसका एलसीएम लिया तो पावर दोनों पे ऊपर वाले टर्म के ऐसे, एक्चुअली ऐसे होगा 1 प्लस वाई माइनस 1 ओवर 1 प्लस वाई होल पावर n माइनस 1। फिर हमने पावर्स को अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब देखें इस 1 के साथ ये 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बन जाएगा बीटा mn इज इक्वल टू, क्या बनेगा 0 से इंफिनिटी, ऊपर क्या आएगा y पावर n माइनस 1 और नीचे क्या आएगा हाँ जी, और नीचे इसको देखें ये 1 प्लस वाई है, ये 1 प्लस वाई है, आपस में मल्टीप्लाई हो गए, पावर ऐड हो जाएगी तो बनेगा 1 प्लस वाई पावर, देखें माइनस 1 प्लस 2 इज प्लस 1, तो हमारे पास आएगा m माइनस 1, ये बन जाएगा, ये चीज़ है, ये चीज़ बन जाएगी m माइनस प्लस 1, सॉरी ये चीज़, और इधर क्या है n माइनस 1, तो हमारे पास बन जाएगा m प्लस n और प्लस 1 और ये क्या है माइनस 1, तो मैं लिख देता हूँ प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया बीटा mn इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी y पावर n माइनस 1 ओवर 1 प्लस वाई होल पावर m प्लस n dy। अब जरा इसको देखें,
अगेन वही प्रॉपर्टी ये वाला इस्तेमाल करें इसमें, कौन सी, डेफिनेट इंटीग्रल की, कि अगर हम फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास ये बन जाएगा, वी कैन राइट बीटा, इधर जगह नहीं है जहाँ लिखा हूँ मैं, बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to infinity x पावर n-1 ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस n dx। हमने ये यहाँ से बीटा एम एन लिया था लेफ्ट हैंड साइड से, इस पर डेफिनेशन इस्तेमाल की तो बीटा एम एन किसके बराबर आ गया हमारे पास, x पावर n-1 ओवर 1 प्लस एक्स m प्लस n। ये प्रूव हो गया। अब आगे देखें, वी नो दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, तो m की जगह हम n यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। देयरफॉर दिस विल बी आल्सो इक्वल टू बीटा, नो, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। देयरफॉर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी we can write that बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। अगर बीटा एम एन इसके बराबर है तो बीटा एन एम किसके बराबर होगा, एन की जगह क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। हमारे पास बनेगा एक्स पावर m-1 ओवर 1 प्लस एक्स, जहाँ एन एम प्लस एन है तो ये बन जाएगा n प्लस एम। n प्लस एम इज अगेन इक्वल टू m प्लस n बिकॉज m and n are real numbers, so m plus n is equal to n plus m because real numbers are commutative, so we can write here m plus n dx। ये हमारे पास हो गई 1 और ये 2, so 1 and 2 show that बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to infinity x पावर n-1 ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस n dx इज इक्वल टू 0 to infinity x पावर m-1 ओवर 1 प्लस एक्स m प्लस n dx। सो दिस इज आल्सो प्रूफ। फिर मैं समझा रहा हूँ, एक दफ़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हमने ये प्रूफ करना है, फिर इससे हम ये बात प्रूफ करेंगे। हमारे पास जो डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड ले बीटा एम एन कैन बी रिटन एज 0 to 1 x पावर m-1 1 माइनस एक्स n माइनस। अगर आप यहाँ पर बीटा एम एन इक्वल टू एन एम यूज करते हो, यहाँ पर x पावर n-1 1 माइनस एक्स पावर m-1 पुट करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। फिर आप वहाँ पे पहली प्रॉपर्टी लिखा तो ये आ जाएगी, जो आपकी मर्जी है, इट्स मेक्स नो डिफरेंस। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। यहाँ पर 1 ओवर 1 प्लस एक्स है, इसको देखते हुए हमने x की जगह 1 ओवर 1 प्लस वाई पुट कर दिया। तो यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस वाई इधर आ जाएगा, 1 ओवर एक्स आ जाएगा। इट कैन बी यूज टू मैनिपुलेट लिमिट्स। व्हेन x टेंड्स टू 0 इट मीन 1 ओवर y टेंड्स टू infinity, we have to put limit of 1 plus y. Where similarly when x is infinity then y is 1 plus y is 1 over infinity is 0. Therefore limits will be 0 to infinity to 0. Similarly from here we can find dx is equal to, इस पे डेरिवेटिव लें तो -1 ओवर पावर रूल लगाएं, माइनस ये 1 प्लस 1 प्लस वाई पावर -1 है, -1 शुरू में आ गया और बाद में आ गया 1 प्लस 1 होल पावर -2 नीचे ले आए, 1 प्लस 1 स्क्वायर लिख दिया डी वाई, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई। ये सारी सब्स्टिट्यूशन इसमें पुट करें यहाँ पर। अब एक्स क्या आएगा, 1 ओवर 1 प्लस वाई पुट कर दिया। आगे क्या है 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स की जगह फिर 1 ओवर 1 प्लस वाई होल पावर n-1 और ये डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया कि आसानी के लिए आप चाहे तो ना भी करें, सारे इकट्ठे कर ले मल्टीप्लाई, ये दो कर ले, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। हाँ उससे पहले माइनस भी है, माइनस बाहर आएगा तो इसको लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 to इन्फिनिटी बन जाएगी और माइनस खत्म हो जाएगा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस वाई पावर क्या आ जाएगा m-1 प्लस 2 और इस पे एलसीएम लें तो ये बनेगा 1 प्लस वाई -1
ओवर 1 प्लस वाई होल पावर n माइनस 1 n पॉइंट 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का अलग निकाल दी। अब ये 1 से 1 कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया y पावर n माइनस 1 और ये सब को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम चीजें हैं, तो पावर ऐड हो जाएगी, हमारे पास आएगा m प्लस 1, m प्लस 1 बन गया, m प्लस 1 प्लस n माइनस 1, अब प्लस 1 n और माइनस n 1 कैंसिल हो गए, अब बस ये बच गया y प्लस 1 प्लस y पावर m प्लस n और ऊपर क्या बच गया y पावर n माइनस 1 dy। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर लिमिट सेम रहे, फंक्शन वही रहे, तो x की जगह y की जगह x ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वेरिएबल चेंज कर दें, y की जगह x पुट कर दें, हमारे पास आएगा 0 टू इन्फिनिटी x पावर n माइनस 1, x की जगह y की जगह x पुट कर दिया, n माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1 y की जगह फिर x पुट करें, क्या बनेगा 1 प्लस x होल पावर m प्लस n dx। ये हमारे पास कौन, ये प्रूव हो गई। अब हमारे पास बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम है, तो अगर बीटा एम एन इसके बराबर है तो बीटा एन एम किसके बराबर होगा, एन की जगह एम पुट कर दें, एक्स पावर क्या हो जाएगा एम माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा एम प्लस एन विल बिकम एन प्लस एम, और एम प्लस एन एंड एम प्लस एन आर सेम थिंग, सो इट कैन बी रिटन एज बीटा एम एन इक्वल टू आल्सो इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर एम माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर एम प्लस एम। सो फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that beta mn is equal to 0 to infinity x power n minus 1 over 1 plus x whole power m plus n dx, or this is also equal to 0 to infinity x power m minus 1 over 1 plus x m plus n dx। so इस तरीके से हम ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, we have to prove that we have to prove that beta mn is equal to 2 into 0 to pi by 2 sin 2m minus 1 theta into cos 2n minus 1 theta d। ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी जो प्रूफ करते हैं इसको ऐसे शुरू करेंगे जिस तरह पहले करते रहे। बाय डेफिनेशन बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 x पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx। ये हमारे पास है बाय डेफिनेशन। इसको हमने देखना क्या है, किसे ये कैसे बनाएंगे। अगर मैं x को साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूं, क्योंकि ये 2m है, स्क्वायर से काम चल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूं, अब cos पुट कर सकते हैं, cos से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे भी सेम रिजल्ट आएगा। dx will be equal to 2 sin theta cos theta d। ये हमारे पास आ गया। आगे चलें, अब हमारे पास ये है कि लिमिट्स क्या बनेगी, when x is 0 थीटा इसमें when x is 0 theta will become, यहाँ मैं 0 पुट कर साइन इनवर्स ऑफ 0 is 0। when x is 1 theta will become sin inverse of 1, sin inverse of 1 is pi by 2, so limit will become 0 से pi by 2। तो आपके पास बन जाएगा बीटा एम एन
इज इक्वल टू 0 से 0 1 के लिए क्या आएगा पाई बाई 2 और साइन एक्स से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल पावर m-1 हम इसे पुट कर रहे हैं और ये तो हमने प्रूव करना है ना हम यहाँ और आगे क्या आएगा 1 माइनस एक्स जाएगा फिर साइन स्क्वायर थीटा आ गया और यहाँ आ जाएगा n-1 और dx क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा। क्लियर? हमारे पास जो है हमने x की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट कर डेफिनेशन क्या थी बीटा mn इज इक्वल टू x पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर n-1 dx। अब x की जगह हमने क्या पुट किया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी पुट किया और पावर हुई रहेगी और dx जगह 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा ये हमने पुट कर लिया। अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है थोड़ा सा और मजीद। देखें ये आएगा बीटा mn इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। देखें साइन होल पावर से मल्टीप्लाई क्या बनेगा साइन थीटा 2m-2 इंटू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम cos square theta, the fundamental identity of trigonometry. So 1 minus sin square theta is cos square theta और इसके जगह क्या आ जाएगा ऊपर n-1 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई के बना देगा 2n-2। आगे इस 2 को बाहर ले लें ये वाला 2 बाहर आ गया आगे आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा d। गॉट इट? हाँ जी। अब हमने क्या करना है हमने करना ये है कि ये साइन थीटा है ये भी साइन थीटा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर ऐड हो जाएंगी ये पावर 1 है ये है 2m-2 तो बनेगा 2m-2 प्लस 1। आपको पता है 2m-2 प्लस 1 विल बिकम 2m-1। सिमिलरली cos की पावर क्या बन जाएगी 2n-2 प्लस 1 तो ये बनेगा 2n-1 ये पावर बन जाएंगे हमारे पास। तो ये पावर जब बनेगी इसको यहाँ अप्लाई पुट करें तो आपके पास आ जाएगा बीटा mn इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 और साइन की पावर क्या आ रही है दोनों ऐड हो गए साइन थीटा पावर क्या बन जाएगी 2m-1 और cos थीटा की पावर बन जाएगी 2n-1 d थीटा। So this is what we have to prove. We have proved that beta mn is equal to 2 into 0 to pi by 2 sin theta whole power 2m-1 or sin 2m-1 theta into cos power 2n-1 theta d theta. So this is the proof of our third property for beta। तो ये स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज थी बीटा फंक्शंस की जो हमने प्रूफ की है। तो 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। पहली प्रॉपर्टी है बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm। दूसरी प्रॉपर्टी थी बीटा mn इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x पावर n-1 ओवर 1 प्लस x पावर m प्लस n dx is equal to 0 to infinity
x power m minus 1. Using this first property here, we can write it 1 plus x whole power m plus n. ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा काज 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने आज पढ़ी हैं बीटा फंक्शंस की। सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन ये है उसकी डेफिनेशन कि बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 डी एक्स, ये डेफिनेशन है। फिर हमने इसको इस्तेमाल किया, तीन प्रॉपर्टीज प्रूव की। पहली बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, दूसरी बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एक्स पावर n माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस n इंटू 0 इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एक्स पावर m माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस n डी एक्स। तीसरी है बीटा एम एन इज इक्वल 2 इंटू 0 to पाई बाई 2 साइन 2m minus 1 theta cos 2n minus 1 theta d theta. So these are the three properties of beta functions जो आज हमने पढ़ी हैं। एंड मेरे ख्याल में इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आप इसको देखें, इसको समझें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल को आज शाम को फिर दोबारा हाजिर होंगे, जिसमें हम बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन दोनों का रिलेशन पढ़ेंगे और फिर उस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए आगे इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं फॉर एवेल्यूशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल एंड डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन कैसे एवेल्यूएट करते हैं, वो हम कल सीखेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने बीटा फंक्शन पढ़ा है, गामा फंक्शन पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। कल हम इंशाअल्लाह इसका रिलेशन और उसको इस्तेमाल करते कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ प्रूव करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की कोई क्यूरी है, फील फ्री टू राइट मी थ्रू कमेंट्स, और कोई भी सजेशन हो इट विल बी वेलकम्ड। कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो इट विल बी वेलकम्ड। लेकिन मसला जो आपने करना ये है कि इनको अच्छी तरीके से करना है, समझना है और सॉल्व करना है, और कोशिश करनी है कि इससे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन एडवांस में मिलते रहें। आपको टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के लेक्चर था। हमने क्या किया था, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनका प्रूफ पढ़ा और बीटा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी। कल हम फिर बता रहा हूँ बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की रिलेशन को एक्सप्लोर करेंगे और आगे मज़ीद प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे SMS में और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन एडवांस में मिलते रहें और आप तमाम कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।